Assalamu alaikum and good morning. Welcome back student. Today we are going to start the next agricultural product, that is rubber. Rubber is mainly used to make tires, about half of which are made from natural rubber and half from synthetic rubber. Made from chemicals, rubber is also widely used for making hose pipes, belts for machineries in factories and mines, shoes, and as an insulator of electrical equipment. जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि रबर जो है वो यूज़्ड होता है टायर्स वगैरह बनाने में, और इसके अलावा हॉर्स पाइप्स वगैरह में भी यूज़ होता है, शूज़ में होता है, और ग्लव्स और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह में भी रबर यूज़ होता है. बट द मेन थिंग इज़ हाउ वी कैन गेट द नेचुरल रबर फ्रॉम अ ट्री. सो I am going to start the next paragraph. Natural rubber, which is usually considered better for most purposes than the synthetic variety, is made from the sap of a number of trees which grow in tropical forests. The rubber tree was originally found in the Amazon rainforest, but in the 19th century, some British scientists smuggled out some seeds and plant and grew them in Southeast Asia. Now I will tell you how we can get natural rubber from a tree. Natural rubber is made by extracting a liquid sap called latex from certain types of tree. Latex is gathered from the tree by making a cut in the bark and collecting the running sap in the cup. बेसिकली होता क्या है, ये जो रबर के जो ट्री है, जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं. सी लुक एट हेयर. रबर का ये जो ट्री है, इसको जो है वो कट किया जाता है. इसके अंदर से एक सैप निकलता है. सैप मीन्स वाटरी सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड मिनरल्स डेट सर्कुलेट थ्रू दी वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट. ये सैप जो है वो एक मिल्क के कलर का होता है, लिक्विड, ठीक है, और जो है ये सर्कुलेट करता है वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अ प्लांट, ठीक है. तो जब ये ओरिजिनल रबर कहलाता है. और सिंथेटिक रबर क्या होता है? सिंथेटिक रबर इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट. ओके. अच्छा, पहले रबर जो है वो वॉज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. पहले सिर्फ यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फाउंड होता था. बट 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने स्मगल किया सम सीड्स एंड प्लांट्स एंड ग्रू देम इन साउथ ईस्ट एशिया. पहले सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये होता था दरख्त रबर का. लेकिन फिर उसके बाद कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने स्मगल किए उसके सीड्स और प्लांट्स, और उसको फिर अपने कंट्री में जाके उन्होंने लगाया. उसके बाद फिर ये डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रो करने लगा, ठीक है. अगर बात यहाँ पर की जाए मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो मुस्लिम कंट्रीज़ आर प्रोड्यूस 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रबर, ऑलमोस्ट ऑल इट बीइंग नेचुरल रबर फ्रॉम अ ट्री. मुस्लिम कंट्रीज़ में 20% जो है वो रबर जो है वो वर्ल्ड को सप्लाई करता है. और वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो करते हैं? उनमें नाम है मलेशिया, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, और म्यांमार हो गए, एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया. Now come to the next agricultural product, that is tea. Tea, originally a bush from China, is now grown widely in Southeast Asia and Africa. It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well-drained soil. The leaves of the tea bush are picked by experienced worker. The first tiny leaves on the tip of a stem are the finest and are made into very expensive teas. The cursor leaves lower down are made into a cheaper variety of teas. Okay, the leaves are usually fermented so that they turn black. So the leaves are harvested from the tea plant and then transported to a nearby tea factory for production. During the harvest, leaves are only plucked from the top 1 to 2 inches of the tea plant. Their tea leaves are produced every 7 to 15 days during harvest season. As you know all about, tea can be classified as black, green and white, where black tea is a fully fermented or oxidized tea. Green tea and white tea are unoxidized tea. And they are saying China prefer green tea. The seeds from the tea bush are crushed to get an oil which can be used for cooking. See,
टी की जो है वो अगर टी को क्लासीफाइड किया जाए तो वो एक ब्लैक, ग्रीन और वाइट कलर के इसके लीव्स होते हैं। जो टी बनती है, आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन टी, ब्लैक टी जो नॉर्मली घरों में बनती है, जो दूध वाली चाय जिसमें बनाई जाती है, या नॉर्मल कहवा भी पिया जाता है, ठीक है। उस बेसिकली होता क्या है, ये जो टी के जो लीव्स होते हैं ये स्टेम के बिल्कुल टिप पर होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जस्ट 1 और 2 इंचेस के ये होते हैं, और इसको बहुत ही आराम से और बहुत एहतियात के साथ इसको ऊपर से उतारा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्मेंटेड जो वर्ड दिया गया है, बेसिकली फर्मेंटेड इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अ कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च और शुगर। ओके, सो आप अगर फर्मेंटेड को देखें तो वो यूँ भी लिया जा सकता है कि ट्रांसफर्ड, ठीक है, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है डेट दे टर्न ब्लैक। ऑल्दो सम कंट्रीज़ स्पेशली चाइना प्रेफर ग्रीन टी, चाइना जो है वो ग्रीन टी प्रेफर करता है। खैर अब तो पाकिस्तान में भी ग्रीन टी को बहुत सारी जगहों पर प्रेफर किया जाता है। द सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश टू गेट एन ऑयल विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग। जो टी की जो बुशेस हैं उसको क्रश करके एक ऑयल भी बनाया जाता है जो कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है। एंड समटाइम एज ए कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर। और इसके अलावा कॉस्मेटिक वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके जो टी के जो लीव्स होते हैं उससे जो ऑयल बनता है उसको कॉस्मेटिक वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर बात करें तो मुस्लिम कंट्रीज़ में अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी, दीज बींग्स मेनली बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की। इन कंट्रीज़ के नाम ज़्यादातर दिए गए हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर देखा जाए जो वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं टी 15%। ओके, वैसे चाइना जो है, चाइना कहा जाता है कि वो तो वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी लीव्स। Now come to the next agricultural product, that is coffee. This is one of the most valuable agricultural product. It was discovered in the Somalia-Ethiopia area. It is said by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree. It was said to have been first used by man who had to observe long hours of prayer at night as it kept them awake. अच्छा, कॉफ़ी जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुई थी इथोपिया में, सोमालिया में। हुआ क्या था, इन 9th century इथोपियन गैदर्ड हु डिस्कवर्ड कॉफ़ी व्हेन ही नोटिस हाउ एक्साइटेड हिज शीप्स बिकेम आफ्टर ईटिंग लीव्स एंड सीड्स फ्रॉम अ कॉफ़ी ट्री। उन्होंने ये नोट किया कि उनकी शीप्स जो है वो कॉफ़ी ट्री से, ये जो कॉफ़ी ट्री जब ये लोग इसके लीव्स जब खाते हैं इनकी शीप्स वगैरह, तो ये इतने एक्साइटेड और इतने लाइवली कैसे हो जाते हैं, इतने एनर्जेटिक कैसे हो जाते हैं। तो जब उन्होंने ये मालूम किया तो उनको ये पता चला कि हाँ ये ख़ास किस्म के प्लांट है कोई, उसकी लीव्स खाने से ये इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कवर हुई थी कि हाँ ये कॉफ़ी होती है, इस तरह कॉफ़ी इसके बीन्स होते हैं। लुक एट हेयर, क्लस्टर ऑफ कॉफ़ी बीन्स ऑन अ प्लांट। ये क्लस्टर, इस तरह के कॉफ़ी बीन्स होते हैं जब वो प्लांट पर होते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर के होते हैं, इस तरह के क्लस्टर्स कहते हैं, झुंड। कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग को अंडरलाइन करें मीन्स भूनना। द कॉफ़ी सीड्स, रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड्स एंड ग्राइंडिंग दैम फॉर ब्रूइंग, ग्राइंडिंग को अंडरलाइन करें, ग्राइंड करते हैं ना, पीसना। इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड इनटू इंस्टेंट कॉफ़ी डेट डज़ नॉट नीड टू बी ब्रूड। अच्छा, होता क्या है, ये ग्रीन कलर के इस तरह के कॉफ़ी सीड्स होते हैं, इनको जब रोस्ट किया जाता है, रोस्ट करने के बाद उनकी शक्ल इस तरह हो जाती है, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। उसके बाद फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, यानी पीसा जाता है। पीसने के बाद वो एक पाउडर फॉर्म में आते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी वो कॉफ़ी बनती है। अच्छा, इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडोनेशिया है मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी का। ऑल्दो अ कंसिडरेबल अमाउंट इज़ ग्रोन इन यमन, इथियोपिया एंड द आइवरी कोस्ट। मुस्लिम कंट्रीज़ ग्रो अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई ऑफ कॉफ़ी। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में देखा जाए तो 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई ऑफ द कॉफ़ी। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं 15% कॉफ़ी की सप्लाई करती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ कोको, wheat and rice. Okay, I will explain these 3 agricultural products on my next lecture. Okay, thank you.